golden age of America begins right now. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Tariff on China, 100%, on top of what they're already paying. Beijing is hiking its retaliatory tariffs on U.S. goods today from 84% to 125%. Involve sea, air, and all kinds of other armaments. What we're going to see is that 2025 ends with some serious tension in the Strait of Taiwan. Says Ukraine's President Zelensky has to start accepting things that he's losing the war with Russia. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. American bombs hit targets in Iran. Well, this was the scene in Tel Aviv in Israel just an hour or two ago. There have been huge explosions in the sky over central Israel. The U.S. military announced another strike on a boat allegedly transporting drugs in the eastern Pacific Monday, killing 2 people. It's the 30th such attack since early May September. 2025, the two neighbors have exchanged fire along the shared frontier. Today, on 10th May, at the time of India claims to have targeted terrorist infrastructure in several locations inside Pakistan and Pakistan-administered Kashmir. Engulfed in smoke as the Nepalese parliament burned, anti-corruption demonstrators celebrated. In Indonesia, after protesters set fire to a regional parliament building. The declaration went viral online, urging other security forces not to follow it. Like in New York. What do we do? دو 2025 کا اختتام ہو چکا ہے اور بہت ہی ہنگامہ خیز سال رہا. اس میں بہت بڑے بڑے واقعات پوری دنیا میں رونما ہوئے. پاکستان میں ہمیں نظر آیا کہ ایک 4 روزہ جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی جس نے بہت بڑے پیمانے پر اس خطے کی صورتحال کو تبدیل کیا. اور اسی طرح پوری دنیا میں ہمیں بہت سی جنگیں نئی شروع ہوتی ہوئی نظر آئیں. اسی طرح خانہ جنگیاں بہت سے ملکوں میں نظر آئیں. اسی طرح انقلابی تحریکیں پوری دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں. نیپال میں، انڈونیشیا میں، مراکش میں، فلپائن میں اور مڈغاسکر میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہڑتالیں، جنرل سٹرائکس جو ہیں ہمیں اٹلی میں، پرتگال میں نظر آئیں، فرانس میں نظر آئی. اور ہمیں سوشلسٹ امیدوار نیو یارک کے اندر کامیاب ہوتا ہوا نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں نظر آیا. بہت زیادہ ہنگامہ خیز سال ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 2026 کیا اس سے کم ہنگامہ خیز ہوگا؟ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2026 میں اس سے کہیں زیادہ بڑے واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں. آج 2026 کا پہلا دن ہے اور ابھی جو ایران سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہت بڑی ایک تحریک ایران میں شروع ہو چکی ہے. تہران کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں
जो तेहरान के बाज़ार से शुरू हुए, वहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन अब उसमें स्टूडेंट्स तेहरान के शामिल हो चुके हैं और वो तेहरान से निकल के पूरे ईरान में एहतजाज फैल चुके हैं। फारस जो सूबा है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं और सरकारी इमारतों के अंदर लोगों ने जलाओ घराव किया, पथराव किया है और काफ़ी बड़े वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि ईरान में अफराते ज़र 40% तक पहुँच गया है और उसकी करेंसी की जो कदर है वो बहुत ज़्यादा पिछले एक साल में वो तकरीबन आधी के करीब गिरी है। तो ये सूरत हाल तकरीबन दुनिया के हर मुल्क की है और 2026 में इस तरह की तहरीकें आपको हर मुल्क में, हर खिते में नज़र आएंगी। पाकिस्तान में हमने पिछले साल आज़ाद कश्मीर की बहुत बड़ी अवामी तहरीक देखी, जब लाखों लोग पूरे आज़ाद कश्मीर में मोबलाइज हुए। मुजफ्फराबाद में 7-8 लाख लोग जमा हुए और अपने मुतालबात के हक़ के लिए धरना दिया और वहाँ के हुक्मरान तमाम तर जबर के बावजूद, गोलियाँ चलाने और 7 लोगों को शहीद करने के बावजूद उसको नहीं रोक सके। तो 2026 में हमें नज़र आ रहा है कि उससे बड़े वाक़यात रूनुमा होने जा रहे हैं। बड़ी पैमाने पे जो जंगें हैं, खाना जंगियाँ फैल रही हैं, रियासतों का इन्हदाम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यमन में एक नई जंग शुरू हो चुकी है और उस हवाले से हमें नज़र आ रहा है कि बुनियादी तौर पर सरमायादाराना निज़ाम का ज़वाल है जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों को कत्ल कर रहा है। फ़लस्तीन में हमने देखा, यूक्रेन में हमने देखा, सूडान में हमने देखा कि लोग कहत साली का शिकार हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, बमबारी, जंगें बढ़ती चली जा रही। और हम समझते हैं कि आगे बढ़ने का, इससे निजात का वाहिद और रास्ता जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिज़म है और उसी के लिए इनकलाबी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर नौजवानों तक, मज़दूरों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि ये जो निज़ाम है ये ख़त्म हो रहा है, ज़वाल पजीर है, दुनिया को तबाही और बर्बादी में धकेल रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज की आप बात करें, पूरी दुनिया और इस सियारे का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग चुका है और उसका वाहिद हल ये है कि सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म किया जाए। ये जो जालिम हुक्मरान तबका है, चाहे वो अमेरिका में, यूरोप में बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में है, इसको उखाड़ फेंका जाए और मजदूर तबका आगे बढ़ता हुआ इस निज़ाम का खात्मा करे, एक सोशलिस्ट इनकलाब के जरिए सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा करे। बहुत से लोग कहेंगे कि शायद दुनिया ख़त्म हो रही है, हम कहेंगे कि नहीं, एक निज़ाम ख़त्म हो रहा है और वो सरमायादाराना निज़ाम है, वो सरमायादाराना रियासतें हैं, वो उनकी फ़ौज, उनकी पुलिस, उनकी अदालतें, उनकी फैलाई हुई जंगें हैं जो दुनिया को तबाह और बर्बाद कर रही हैं। सरमायादाराना मईशत है जिसको बैंक कंट्रोल करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां कंट्रोल करती हैं, जिसमें सिर्फ चंद अरबपति हैं जिनके पास दुनिया की निस्फ से ज़्यादा दौलत है, जबकि दुनिया के अंदर निस्फ आबादी है, 50% से ज़्यादा आबादी है जो गुर्बत में, भूख में ज़िंदगी गुजार रही है। अरबों लोग हैं और ये तादाद 2.5-3 अरब लोग बनते हैं जो भूख में, गुर्बत में, बेरोज़गारी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान से हर साल लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर समुद्रों के अंदर मर रहे हैं, कश्तियों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद बेहतर ज़िंदगी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन हर जगह हमें नज़र आता है कि भूख, बीमारी और बेरोज़गारी उनका इस्तकबाल कर रही है और इसका वाहिद हल ये है कि इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ें, उसकी जदोजहद में शामिल हों और सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ एक फैसला कुन जदोजहद का आगाज़ किया जाए। सोशलिस्ट इनकलाब के लिए एक नाकाबिले मुसाले जदोजहद का आगाज़ किया जाए और इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में वही कुव्वतें तामीर कर रही हैं ताकि ये जंगें, बेरोज़गारी और भूख ख़त्म हो। और ये पार्टी इनकलाबी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का हिस्सा है जो पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह की कम्युनिस्ट पार्टियां तामीर कर रहे हैं ताकि सरमायादाराना निज़ाम दुनिया के हर मुल्क से ख़त्म किया जाए। वहाँ पे मजदूर तहरीक के साथ शाना बशाना ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि वहाँ तक इनकलाबी नज़रियात, कम्युनिज़म के जो इनकलाबी नज़रियात हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और उनको जोड़ते हुए सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ जदोजहद तेज़ कर रहे हैं। इनकलाबी नज़रियात के लिए किताबें शाया कर रहे हैं, रिसाले हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए और इसी तरह अपने प्रोग्राम्स में, अपने मीटिंग्स में, अपने इजलासों में इनकलाबी नज़रियात की तरवीज कर रहे हैं। इसीलिए हम नौजवानों से, मजदूरों से, किसानों से अपील करते हैं कि वो आएँ, इस पार्टी का मेंबर बने और इस जद्दोजहद के साथ अपना हिस्सा डालें ताकि एक फैसला कुन लड़ाई की तरफ आगे बढ़ा जा सके और सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा करते हुए एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए दुनिया से भूख, बीमारी, जंगें ख़त्म की जाए, हर शख्स को रोटी, कपड़ा, मकान दिया जा सके, मुफ्त इलाज और मुफ्त तालीम दी जा सके। और ये वसाइल मौजूद हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में। सिर्फ उनके ऊपर चंद जो लुटेरे हुक्मरान हैं उनका कब्जा है। जब ये अवाम के कंट्रोल में इज्तिमाई
کنٹرول میں آئیں گے تو ہر شخص کو یہ سہولیات فراہم کی جائیں گی اور بھوک اور بیماری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ انقلاب زندہ باد، سوشلزم زندہ باد، کمیونزم زندہ باد۔